Welcome once again to our AS level biology batch. And so, starting from a brief introduction of mine, it is that my name is Shazambar, and I'll be your course instructor for AS biology. And I completed my O levels from Beacon House in 2020. Then I got into Beacon House College program. I completed my AS level from BCP. Then I left BCP because बहुत सारे reasons थे, and one of them was कि they couldn't handle A levels very well, the BCP program, and then I switched as a private student. So Ambitions का बहुत अच्छा experience रहा. I completed my A2 levels from Ambitions, and like Abdul Rahman mentioned that you'll have the one of the best teachers for physics, chemistry, and biology. And I am also their student. Like I was their student in A2s. So now I am a BDS student. I'm currently doing BDS from Sir Syed College. It's located in Karachi for those who are not in Karachi and are unaware about the colleges here. And side by side, I am also pursuing my Alma degree from Mariam Institute. So technically, I completed my A levels 2 years ago in 2022. Then I took a gap year, and then I enrolled myself into Alma degree, and then I enrolled myself into BDS program. So these are my academic affiliations. Now moving towards my professional affiliations. So I'm engaged in quite a lot of projects right now, and I'm currently the CEO of ASKIT. I'll let you know what ASKIT is. Then I'm the academic director at Ambers Academy, and this is where you are right now in a virtual setting. So a brief intro of Ambers Academy is that it like my grandparents started Ambers Academy 30 years ago, and I think I'm the third generation to carry forward their legacy. Initially, it was known as Amber Practical Center, and now we renamed it to Ambers Academy. We are offering multiple courses of OA levels, SAT and MDCAT. Side by side, we offer group tuitions, we offer one-to-one personal tuitions. So I've been teaching for the past 4 years, I believe. Yes, I started teaching in 2020, right after completing my O levels. And so far, it has been a wonderful journey of teaching because I really bond really well with my students, I believe. और क्योंकि सेम एज ग्रुप ही होता है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एज का. So my students become my friends eventually, and I have been teaching locally and internationally. So Alhamdulillah, it has been a wonderful experience. And I'm also the founder of Aliman. I recently launched this initiative of Aliman. Aliman is a platform of Dawah. We offer Quran programs, tafsir programs, hadith programs, mentorship, and spiritual sessions to, especially to our youth. So this platform of Aliman is dedicated for our youth. And I also have a YouTube channel of ProDoc Life. So I'm a co-founder of ProDoc Life. I run it along with my mother. And FIR is very close to my heart, this initiative of mine, because I'm currently working on it. And FIR is a medical oriented project. And we got recognition of FIR from Aga Khan Hospital. It's basically an initiative where we'll be educating common man to recognize, to identify symptoms, and to take first immediate response right after facing any medical emergency, such as heart attack or stroke or any of them. It could be an accidental case. So how can a person, how can a common man who does not belong from medical profession, how can he work in order to buy time till he reaches the healthcare provider? So we have a board of directors, and all of them are medical doctors, Alhamdulillah, and they'll be working along with me, and we'll be producing reels and content for awareness, especially for a common man. So FIR is currently in pipeline. We'll be starting FIR in mid of August. Other than that, AskIt is a coaching and mentoring platform. We offer workshops and mentorships to all the age groups. We basically work
basically work in a manner at Askit that it provides 360-degree solution to a common man, be it how can he work on his career, how can he work on his health, how can he work on his lifestyle. So we have an expert panel at Askit who are continuously helping teenagers, our youth, our people who are middle aged and people who are older as well. And we are also working heavily on mothers and women, so they can lead a meaningful and purposeful life. So these are my professional affiliations. अगले 2 साल they're going to be really tough, and because there is going to be a massive jump from O levels to A levels. But the good thing is that AS level is not that difficult as compared to A2 levels. A2 is going to give you a tough time, but AS, if you follow all the strategies that we'll be offering you and the way I'll take the course ahead, then I believe that AS level of biology will not give you a tough time. Even for physics and chemistry, I can say that AS is not going to give you a tough time. But A2, you will have to work really hard for your A2 levels because the syllabus is massive and concept बहुत ज़्यादा है. सो A2 जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आपको सब लोग डराएंगे कि O लेवल से A लेवल्स की ही जंप इतनी भारी होती है कि उससे डरना नहीं है. बेसिकली यू नीड टू टेक दिस चैलेंज. Or one thing that I would like to mention is because all of you want to enter into the medical field, right? So एक पहले से एक बैड न्यूज ये है कि जब आप MT कैट के लिए तैयारी करेंगे तो MT कैट में आप लोगों का A लेवल्स का सिलेबस काम नहीं आएगा. For that you'll have to go through your own syllabus. अगर कोई कराची से है बच्चा तो उसको सिंध का बोर्ड पढ़ना पड़ेगा, लाइक उसको सिंध की बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी. और अगर कोई लाहौर से है या कोई पंजाब साइड से है तो उसको फिर पंजाब की टेक्स्ट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी फॉर MCAT, नॉट फॉर A-levels. तो वो आपका जब चेंज आएगा ना तो यू विल फील डिवास्टेटेड कि आप उस वक्त रिग्रेट कर रहे होगे कि हमने A-levels क्यों करा. But trust me on this कि A levels is going to build your foundation. And आपको ये ऐसे concepts देगा because इंशाल्लाह when you get into medical field आप realize करोगे कि आपके concepts are way better than those who are pursuing FSC वाला board. तो this is a good news and थोड़ी सी bad news ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी for MD CAT. बट इंशाल्लाह हो जाता है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, सब कर लेते हैं, आप लोग भी कर लोगे. बस थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड चाहिए होगा पढ़ने के लिए और सीरियसनेस होगी, मोटिवेशन होगी. बिकॉज देखें अगर आपने A लेवल्स को AS लेवल को स्पेशली अगर लाइट लिया और अगर इसमें ग्रेड खराब हो जाता है, सो दिस इज लाइक आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटिमिडेट एनी ऑफ यू. बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि AS को अगर अच्छे से कर लिया ना तो आपका A2 सिक्योर हो जाएगा. बिकॉज आपकी AS की ग्रेड्स कंबाइन होते हैं आपकी A2 की ग्रेड्स के साथ. और यहाँ पे मैं अपनी पेपर पैटर्न जब समझाऊंगी तो you'll come to know कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली. AS में अगर आपका ग्रेड फॉर एग्जांपल आ जाता है B और A2 में बायोलॉजी में लेट्स सी आपका C आ जाता है, तो B और C आपको कहीं भी लेके नहीं जाएगा, आपका ग्रेड गिर गया उसमें. बट अगर आपने AS में ही इतनी अच्छी तैयारी करी, AS में वो फर्स्ट ऑफ ऑल A स्टार नहीं आता. AS में आपका मैक्सिमम ग्रेड इज A और फिर A2 में आपका वो A स्टार बन जाता है. तो ये आपने AS में अभी बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए 3 पेपर्स देने होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3. पेपर 1 इज MCQ बेस्ड, पेपर 2 आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 3 आपका प्रैक्टिकल होता है. तो इस पर आपको बहुत मेहनत करनी है फ्रॉम डे 1. एडिशनल आपके पास हम अवेलेबल हैं, हम आपको सारा कंटेंट दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स दे रहे हैं, पास पेपर की हम तैयारी करवा रहे हैं. तो वी वांट यू कि आप लोग भी जो हम लोग आपको करवाएं आप उसको रेसिप्रोकेट करो. ऐसा नहीं है कि हम अच्छा वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन इज मेरा नंबर इज इन द ग्रुप, राइट? सो अगर आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी फेस हो किसी भी टॉपिक पे जो हम कवर करें या किसी पास पेपर में, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी आइदर ऑन द ग्रुप और ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर. ठीक है? तो हर चीज को ना देन एंड देयर क्लियर करना है इंस्टेड ऑफ कीपिंग दोस कॉन्सेप्ट्स कि हम मई जून में बैठ के करेंगे. नहीं होगा. आखिर में जब इसको लेके बैठेंगे इतना बड़ा जाइंट हो जाएगा AS का सिलेबस कि ये कंप्लीट नहीं हो पाता अगर आप इसको मार्च में लेके बैठोगे या अप्रैल में लेके बैठोगे, सिर्फ पैनिक अटैक होगा. तो वील ट्राई कि जो आपका कंटेंट है इसमें आपके 11 चैप्टर्स हैं and we'll try that we complete the content by I believe October. और उसमें हम आपके पेपर्स भी रखेंगे.
जो जो टॉपिक हो जाएगा उसके हम 5 पेपर्स करेंगे, फिर आप लोगों का टेस्ट हुआ करेगा उस पे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए। उसके बाद जो हमारा कंटेंट है, लेट्स से अगर अक्टूबर टेंटेटिवली अक्टूबर तक खत्म हो जाता है, देन वी हैव नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीने अगर हम एस्टिमेट लगाएं और उसमें हम पेपर 1 एंड पेपर 2 में लास्ट 5 इयर्स के पास पेपर्स करना है। अच्छा, वन थिंग कि आप जब केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की भी तैयारी करेंगे तो आपको लास्ट 5 इयर्स को कंप्लीट करना होगा, बिकॉज लास्ट 5 ईयर के पास पेपर करने से आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि पेपर किस तरीके का बन रहा है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। और ये आई थिंक ओ लेवल्स में भी आपको पता होगा कि 5 इयर्स के पास पेपर्स कहे जाते हैं कि आप सारे वेरिएंट्स करें, मई जून भी और अक्टूबर नवंबर भी, फिर 4-1 जो आपके दूसरे जोन के पेपर्स होते हैं, जोन 1 होता है हमारा, जोन 2 है, जोन 3 जोन के पेपर आप सारे अटेम्प्ट करें। आपको पास पेपर्स में आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि हमने पास पेपर्स कैसे अटेम्प्ट करना है, ट्रस्ट मी यू विल गेट एन ए। सीधा सीधा आपको बायोलॉजी में इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जितनी आप दूसरे सब्जेक्ट में करोगे, बिकॉज फिजिक्स थोड़ा सा टफ टाइम देगी, बट केमिस्ट्री एंड बायो आपको टफ टाइम नहीं देगी। तो पास पेपर्स पहले कंटेंट एंड देन द पास पेपर्स, इसके सारे वेरिएंट्स, उसमें हम पूरी टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि पेपर 1 को कैसे मैनेज करना है, पेपर 2 को कैसे मैनेज करना है। और वन थिंग, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग फ्रॉम द पास्ट 4 इयर्स, तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो सही लिखा था सारा कुछ, हमारे मार्क्स तो नहीं आए, हमारा तो ग्रेड ही नहीं आया। तो जो ग्रेड नहीं आता वो इसलिए नहीं आता बिकॉज वो सारी कहानियां लिख देते हैं पेपर में। अगर आप ईरान तुरान की सारी कहानियां लिखेंगे देन यू नॉट गेट मार्क्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। यहाँ पर आप फिर मार्क खा जाएंगे कि आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे और आप कहोगे कि हमने तो पूरी मेहनत की थी। तो हमें ना वो आर्ट सीखना है कि हम वो कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करें, और ये ऑब्वियसली प्रैक्टिस से आएगा कि हम वो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें कि जो हमसे एग्जामिनर चाहता है हम वो कीवर्ड्स लिखें, बजाय कि हम एक लॉन्ग डिटेल पैसेज लिखें, बिकॉज दिस इज नॉट योर इंग्लिश का पेपर। यू डू नॉट हैव टू बी डिस्क्रिप्टिव, यू हैव टू बी कॉन्सेप्चुअल इन बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो वो कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने का जो आर्ट है ना, वो हम इस पूरे कोर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे। एंड देन द एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। एंड हम आई वुड नॉट इनकरेज कि आप इसमें रट्टे लगाओ बैठ के, ठीक है बायोलॉजी में रट्टा होता है, बट आई वुड नॉट इनकरेज। I want that you learn the concepts in order to develop the ability to critically think and to critically analyze the entire question. Because जब आप questions देखोगे तो आप आधे टाइम तो मुझे ये कहोगे कि ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, बट अगर हम उसको critically analyze करेंगे तो आप समझ जाओगे कि वो आपको नामों से कंफ्यूज करेंगे। एएस का पेपर, बिकॉज दिस इज ए लेवल्स राइट, ये सिंपल नहीं होगा, ये आपको ट्रिक आउट करेगा, तो वो ट्रिक्स हमें सीखनी है। अच्छा, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पेपर 1 द एमसीक्यू वाला पार्ट, उसमें आपका 31% एएस लेवल में काउंट होगा, बिकॉज आपका पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3 कंबाइन होकर आपको एएस का ग्रेड देगा, और विच इज मैक्सिमम ए स्टार एएस लेवल में नहीं आएगा। ए स्टार जो है वो आपका A2 में आता है जब आपके सारे रिजल्ट्स कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो 31% एक बहुत हैवी वेटेज रखता है पेपर 1। और पेपर 1 अगर आपसे नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं हाईली इंकरेज करूंगी, बल्कि मैं खुद ही कराऊंगी कि मैं पेपर 1 पेपर 2 को साइड बाय साइड लेके चलूं, ठीक है। सो पेपर 1 इज 31% एंड पेपर 2 इज 46% ऑफ द एएस लेवल। तो हमें बहुत ज्यादा वेटेज के पेपर्स एएस लेवल में हम कवर कर लेंगे। तो इनशाला अगर हमारा ए आ जाता है एएस में, तो इनशाला A2 में ए स्टार आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, आ जाता है आराम से। बट बी को ए बनाना या बी को ए स्टार बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। और सी तो फिर आप भूल ही जाएंगे, सी तो फिर बहुत ही कोई मिरेकुलस, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है A2 के लिए। बच्चे ये करते हैं एएस का ग्रेड बहुत गंदा आता है, सी डी आ रहे होते हैं, भी कहते हैं हम तो A2 में इतनी मेहनत करेंगे हमारा ए आ जाएगा, नहीं आता, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एएस लेवल बहुत आराम से हो जाएगा if you follow the strategies and if you follow the content and past papers। लेकिन A2 जो है वो फिर आपका बिल्कुल नॉकआउट हो जाएगा अगर हम एएस को जो है वो सिक्योर नहीं करेंगे, ठीक है। फिर जब आपका A2 का रिजल्ट कंबाइन होगा विद योर पेपर 1 पेपर 2 एंड पेपर 3, तो पेपर 1 का उसमें वेटेज हो जाता है 15.5%। और आपका एएस लेवल जो हो जाता है वो 23% हो जाता है। तो 15.5 और 23% भी ह्यूज वेटेज रखता है। आपका पेपर 4 होता है इन योर A2 लेवल्स एंड पेपर 5 होता है। तो 2 पेपर्स आर फॉर A2 लेवल एंड 3 पेपर्स आर फॉर एएस लेवल, और इन सब के रिजल्ट कंपाइल होते हैं तो आपको A2 का रिजल्ट मिलता है, ठीक है। सो आई थिंक हमने अभी जो है वो स्ट्रैटेजी ही कवर करनी थी। आई बिलीव ये चैप्टर आसान है, इसमें कुछ चीजें जो है थोड़ी सी एडवांस हैं। आई बिलीव इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, माइटोसिस एक कम्प्लीटली नया है आप लोगों के लिए, न्यूक्लिक एसिड नया है, सेल मेम्ब्रेन भी नया है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन के आपको सिर्फ फंक्शंस ही पता थे।
you are not aware about the structure, you're not aware about the functions of cell membrane so far. So and one more thing that I would like to add, कि AS biology का content is very interesting. You will enjoy the syllabus because it has a lot that you learn. A2 का जो syllabus है वो थोड़ा सा boring है, थोड़ा dry है, उसको मुश्किल होता है पढ़ना, बट और मुश्किल भी होता है और लेंदी होता है. तो एएस जो है वो हम इंशाल्लाह बाय अक्टूबर, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसका कंटेंट खत्म करा के 3 मंथ्स आपकी पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कराऊं एंड देन यू विल बी गुड टू गो. उसके बाद भी आपके पास काफी अच्छा टाइम होगा, फैब, मार्च एंड अप्रैल, कि उसमें अगर आप मेहनत करो तो आपका पास्ट पेपर्स और अपना सिलेबस रिवाइज करते रहो तो आपको लास्ट मिनट की पैनिक नहीं होगी. सो यू आर एट द राइट प्लेस एंड इंशाल्लाह वील बिगिन राइट आफ्टर 10 minutes.